واقعہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں بے پناہ مشکلات اور مصائب برداشت کیے، لیکن اپنی استقامت اور ایمان کی پختگی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ کا تعلق مکہ مکرمہ کے ایک مظلوم خاندان سے تھا، لیکن آپ کی والدہ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہا اور والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ دونوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان مکہ میں قبیلہ بنی مخزوم کے زیر سایہ تھا۔ آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ یمن سے مکہ آئے تھے اور وہاں قیام پذیر ہوئے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو سنا اور آپ کے نور ایمان سے دل میں روشنی محسوس کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کیا اور یوں آپ ابتدائی مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پر مظالم۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان پر قریش کے کفار نے بے پناہ مظالم ڈھائے۔ آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو قریش نے اس قدر اذیتیں دیں کہ وہ شہید ہو گئے۔ آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے بھی اسلام کے لیے اپنی جان قربان کی۔ وہ اسلام کی پہلی شہیدیں تھیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل نے ایک نیزے کے وار سے شہید کیا۔ یہ منظر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے لیے انتہائی دل دہلا دینے والا تھا، لیکن اپنے والدین کی طرح صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا ایمان کی پختگی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہے جو ان کے ایمان کی مضبوطی اور اسلام کے لیے ان کی قربانی کی علامت بن گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر بے شمار مصائب برداشت کیے۔ مکہ کے ظالم مشرکین نے ان پر شدید ظلم و ستم ڈھائے، لیکن ان کا ایمان ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ ایک دن مکہ کے کفار نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ، ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو پکڑ کر شدید اذیتیں دینا شروع کیں۔ انہیں گرم ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے گئے تاکہ وہ اسلام سے دستبردار ہو جائیں اور اپنے ایمان کو چھوڑ دیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے شہادت کو گلے لگا لیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کی پہلی شہیدیں بن گئیں۔ حضرت عمار پر بھی کفار کی جانب سے شدید دباؤ ڈالا گیا۔ انہیں اتنی اذیتیں دی گئیں کہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر نڈھال ہو گئے۔ اس شدید دباؤ کے تحت حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کفار کی بات مان کر زبانی طور پر اسلام کا انکار کر دیا، لیکن ان کا دل ایمان پر ثابت قدم تھا۔ اس کے بعد جب انہیں چھوڑ دیا گیا تو وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے فعل پر سخت پشیمان ہوئے۔ نبی کریم نے ان کی حالت کو دیکھ کر فرمایا، اے عمار، اگر دوبارہ تم پر دباؤ ڈالا جائے تو پھر بھی وہی کہہ دینا جو انہوں نے تم سے کہلوایا، لیکن تمہارا دل ایمان پر مضبوط رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس صورتحال کو واضح کیا اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو تسلی دی کہ جب کسی پر زبردستی کی جائے اور اس کا دل ایمان پر قائم ہو تو اس کے زبانی اقرار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ یہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مشکلات اور مصائب کا سامنا ہو تو ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے، چاہے ظاہری طور پر کیسی بھی مشکلات کا سامنا ہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی استقامت اور ان کی والدین کی شہادت اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یادگار بن چکی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی خدمات۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم کے ساتھ مختلف غزوات میں حصہ لیا اور اسلام کے لیے بے شمار خدمات انجام دیں۔ اپنے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر مارکوں میں جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آپ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتے تھے اور آپ کے احکامات کی تعمیل میں پیش ہوتے تھے۔ غزوہ خندق کا واقعہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جو ان کی جرأت اور ایمان کی پختگی کا مظہر ہے۔
ये वाक़या ग़ज़वा खंदक के दौरान पेश आया, जो इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब मदीना मुनव्वरा का मुहासरा किया गया था, मुसलमान बहुत मुश्किल हालात से दोचार थे। कुरैश के मुशरिकीन ने मदीना के अर्द-गिर्द एक वसी फौजी इत्तेहाद कायम किया था, जिसका मकसद मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर तबाह करना था। मुसलमानों ने मदीना की हिफाजत के लिए शहर के अर्द-गिर्द एक खंदक खोद ली थी, जो दुश्मन के हमले को रोकने के लिए एक मुअस्सिर हिकमत अमली थी। इस जंग के दौरान दुश्मन मुसलसल खंदक के दूसरी जानिब से मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने और हमला करने की कोशिश कर रहा था। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु इस वक्त मैदान में मौजूद थे और वो खंदक की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए थे। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु खंदक की खुदाई के दौरान भी नुमाया थे। नबी करीम ने हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु को देखकर फरमाया था, ए अम्मार, तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा और तुम जन्नत में दाखिल होगे। इस पेशगोई ने हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में एक और अहम वाक़या का इशारा दिया था, जो बाद में हज़रत अली करम अल्लाह वजह के दौर खिलाफत में पूरा हुआ। खंदक के करीब ही जब दुश्मन हमला करने की कोशिश करता, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु बगैर किसी खौफ के उनका मुकाबला करते और दुश्मन की पेश कदमी को नाकाम बनाते। आपकी बेखूफी और जुर्रत की मिसाल देते हुए नबी करीम ने उन्हें फुरकान का लक़ब भी दिया, जिसका मतलब है हक और बातिल में फर्क करने वाला। इस जंग के दौरान हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूती का मुजाहरा कर रहे थे, बल्कि अपनी हिकमत और बसीरत से भी मुसलमानों की मदद कर रहे थे। खंदक की खुदाई के दौरान हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो शानदार खिदमात अंजाम दे, वो इस्लाम की तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। ये वाक़या हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में इस बात का सबूत है कि वो न सिर्फ इस्लाम के लिए जुर्रतमंद सिपाही थे, बल्कि उनके अंदर ईमान की वो पुख्तगी भी थी जो हर आजमाइश में कामयाब होने की ज़मानत देती है। आपकी ज़िंदगी और खिदमात आज भी मुसलमानों के लिए मशअला है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु का किरदार खिलाफत के दौर में नबी करीम के विसाल के बाद हज़रत अम्मार बिन यासिर खिलाफत राशिदा के दौर में भी अहम किरदार अदा करते रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली करम अल्लाह वजह के दौर में अपने खिलाफत की हिमायत और मुसलमानों की रहनुमाई में अहम किरदार अदा किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में जब बाज़ बागी अनासिर ने फितना बर्पा किया, तो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत के साथ वफादारी का मुजाहरा किया, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि आप भी फितना के शिकार हो गए। बाद अज़ा हज़रत अली करम अल्लाह वजह के दौर खिलाफत में हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली की भरपूर हिमायत की। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु का सब्र और इस्तिकामत। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जो उनके सब्र और इस्तिकामत का रोशन नमूना है। ये वाक़या उनकी वालिदा हज़रत समिया बिन्त खुबात रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत के बाद का है। हज़रत समिया रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम की पहली शहीदें थीं, जिन्होंने अपने ईमान की खातिर अपनी जान कुर्बान की। कुरैश के सरदार अबू जहल ने उनको नबी करीम की इत्तिबा की वजह से बेपनाह अज़ियतें दी। हज़रत समिया रज़ी अल्लाह अन्हा को निहायत सफ़ाकाना तरीक़े से कत्ल किया गया, जिसका मंजर हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी आंखों से देखा। अपनी वालिदा की शहादत के बाद हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल गम और गुस्से से भर गया, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। अपनी वालिदा की शहादत को अपने ईमान की मजबूती और अल्लाह की रज़ा की तरफ निस्बत दी। इस वाक़या के बाद भी हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम से अपनी वाबस्तगी में कोई कमी न आने दी। नबी करीम ने हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु को तसल्ली देते हुए फरमाया, सब्र करो ए अम्मार, अल्लाह ताला तुम्हें इसका बेहतरीन सिला अता करेगा। ये अल्फाज हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बाइस तस्कीन बने और उन्होंने अपनी वालिदा की शहादत को इस्लाम की राह में कुर्बानी का एक अजीम वाक़या तस्लीम किया। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु का ये सब्र और इस्तिकामत हमें ये सबक देता है कि ईमान की राह में आने वाले मसाइब और मुश्किलात का सामना करते हुए भी हमें सब्र और तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला के रास्ते में हर कुर्बानी को दिल से कबूल करना
और इस पर इस्तिकामत दिखाना ही मोमिन का हकीकी जौहर है। हजरत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी ग़ज़वा सफ़ियन में। हजरत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु का नाम इस्लामी तारीख में बहादुरी और जानिसारी की अलामत है। आपका एक मशहूर वाक़या ग़ज़वा सफ़ियन के दौरान पेश आया। ये जंग हजरत अली करम अल्लाह वजहा और हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान हुई थी, जिसमें मुसलमान दो ग्रोहों में तकसीम हो गए थे। हजरत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली करम अल्लाह वजहा के लश्कर में शामिल होकर दुश्मनों के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। आपकी उम्र इस वक्त तकरीबन 93 साल थी, लेकिन आपकी जुर्रत और जज्बा जवानों से कम न था। अपने जंग के दौरान दुश्मन के खिलाफ भरपूर जंग लड़ी और अपनी उम्र की परवाह किए बगैर मैदान में मौजूद रहे। इस जंग के दौरान हजरत अमार रजी अल्लाह अन्हु ने एक निहायत अहम और मुअस्सिर तकरीर की, जिसमें अपने हजरत अली करम अल्लाह वजहा की क़ियादत को हक पर साबित किया और लोगों को हजरत अली के साथ मिलकर जंग करने की तलकीन की। आपने फरमाया, मैंने नबी करीम से सुना है कि अमार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा और वो जन्नत में दाखिल होगा। ये बात सुनकर हजरत अली के लश्कर के मुजाहिदीन के हौसले बुलंद हुए। हजरत अमार रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हक का साथ दिया और बालाखर ग़ज़वा सफ़ियन के दौरान शहीद हो गए। आपकी शहादत ने जंग के रुख को मोड़ दिया और बहुत से लोगों को ये यकीन हो गया कि हजरत अली करम अल्लाह वजहा हक पर है। हजरत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत उम्र में किरदार। हजरत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत उमर रजी अल्लाह अन्हु में एक अहम वाक़या पेश आया, जो आम तौर पर कम ही जिक्र होता है, लेकिन यह वाक़या हजरत अमार रजी अल्लाह अन्हु के अदल व इंसाफ और हिकमत का मजहर है। जब हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने इस्लामी रियासत को मजबूत करने और उसके नज़्म व नसक को बेहतर बनाने के लिए कई इस्लाहात की। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कई इलाकों में गवर्नर मुकर्रर किए और हजरत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु को कूफा का गवर्नर बनाया। हजरत अमार रजी अल्लाह अन्हु की दियानतदारी, इल्म और नेकी के बाइस हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन पर भरोसा किया। कूफा के लोग, जो एक जंगजू और सख्त मिजाज कौम थी, ने कई बार हजरत अमार रजी अल्लाह अन्हु की मुखालफत की और उनके खिलाफ शिकायत लेकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास गए। एक बार कूफा के कुछ लोगों ने हजरत अमार रजी अल्लाह अन्हु पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास जाकर उनकी शिकायत की। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन हजरत अमार रजी अल्लाह अन्हु को मदीना बुलाया और उनसे सूरत हाल की वजाहत तलब की। हजरत अमार रजी अल्लाह अन्हु मदीना पहुंचे और खलीफा के सामने पेश होकर तमाम इल्जामात का तफसील से जवाब दिया। आपकी वजाहतें और साफ गोई हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को मुतमईन कर गई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इन शिकायत करने वालों को सख्त तंबीह की और हजरत अमार रजी अल्लाह अन्हु को दोबारा कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया। शहादत। हजरत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत इस्लामी तारीख का एक अजीम और दिल दहला देने वाला वाक़या है। अपने जंग सफ़ियन में हजरत अली करम अल्लाह वजहा की क़ियादत में शिरकत की, जो हजरत अली और हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान हुई थी। इस जंग में हजरत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु 93 साल की उम्र में दुश्मन के हाथों शहीद हो गए। नबी करीम ने पेश गोई फरमाई थी कि अमार को बागी गिरोह कत्ल करेगा, जो इस जंग में पूरा हुआ। हजरत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु की मीरास। हजरत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी मुसलमानों के लिए एक मिसाली नमूना है। आपकी इस्तिकामत, सब्र और ईमान की पुख्तगी हमें सिखाती है कि ईमान की राह में आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त करना चाहिए और अल्लाह की रज़ा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देनी चाहिए। हजरत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु की कुर्बानियों और उनके ख़ानदान की मज़लूमियत ने इस्लाम की तारीख़ में एक रोशन बाब का इजाफ़ा किया है। आपकी जिंदगी और शहादत हमें यह सबक देती है कि हक की राह में आने वाली मुश्किलात और मसाइब को अल्लाह की रज़ा के लिए खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए और कभी भी अपने ईमान को मुतज़लज़ल नहीं होने देना चाहिए। हजरत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु का नाम हमेशा इस्लामी तारीख में सुनहरे हुरूफ में लिखा जाएगा। हजरत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु ने कूफा में अपनी हुक्मरानी के दौरान निहायत अदल व इंसाफ का मुजाहरा किया।
अपने अवाम के हुकूक का खास ख्याल रखा, उनके मसाइल हल किए और इस्लामी कवानीन की पासदारी की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी आपके काम से बहुत खुश थे और उन्होंने आपको एक बार फिर अपने ओहदे पर बरकरार रखा।